Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5 by Brain Root series, and here's the book Science Spark. Today we are going to start with chapter number 8 and the name is Our Neighbors in the Sky. So we are going to learn about Earth's moon, the surface of the moon, phases of the moon, landing on the moon, artificial satellites, tides, eclipse of the moon and the sun. Let's start the chapter with warm-up exercise. Here you have to identify the name of the following moon missions. इन कुछ moon missions के आपको नाम लिखने हैं and here some hints are given. So do it yourself. An object that revolves around the planet is called satellite. Satellite क्या है? एक ऐसा object जो planet के चारों तरफ घूमता है. The moon is the natural satellite of the earth. Moon क्या है? Earth का natural satellite है. And it is called Luna. इसे Luna कहा जाता है. Like Earth, other planets also have their natural satellite. दूसरे जो planets है उनके भी natural satellites Earth की तरह ही होते हैं. अब let's talk about the Earth's moon. The moon is the closest neighbor of in space. Moon क्या है? Earth का सबसे पास वाला neighbor है. And it's smaller than the Earth. ये Earth से छोटा है size में. Is the second brightest object in the sky after the sun. Sun के बाद ये दूसरा brightest object है sky में. It does not have its own light but reflects the light of the sun. इसकी खुद की light नहीं होती लेकिन ये sun की light को reflect करता है. The moonlight we see is actually the sun's light. हमको रात में मून चमकता हुआ दिखता है. मून की जो लाइट दिखती है वो मून की नहीं, एक्चुअली वो सन की लाइट है जो बाउंस बैक हो जाती है मून के सरफेस पे पड़ते ही. Here you can see this is Earth, Moon and Sun. Now let's talk about the surface of the moon. The surface of the moon has hills, mountains, valleys and craters. मून का जो सरफेस है वो इवन नहीं है. उसमें कहीं पे आपको हिल मिलेंगे, कहीं पे माउंटेन्स मिलेंगे, कहीं पे वैलीज मिलेंगे और कहीं पे क्रेटर्स मिलेंगे. जो एस्ट्रोनॉट हैं जो भी मून पे गए हैं, the astronauts landed on moon, saw huge rocky craters on moon. उन्होंने क्या देखा कि बड़े बड़े rocky craters हैं मून पे. Mountains on the moon are very rough and sharp. जो mountains है मून पे वो काफ़ी ज़्यादा rough और sharp हैं. They are made of bare rocks and soil. ये rocks और soil से बनते हैं. Moon also has hole in its ground called crater. Moon के जो surface है उस पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, उन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ द क्रेटर्स वर मेड बाय हिटिंग द हेवनली बॉडीज ऑन द मून. कैसे बनते हैं क्रेटर्स? कैसे मून में गड्ढे हो जाते हैं? जब कोई दूर से आता हुआ उल्का पिंड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हेवनली बॉडी कोई भी आके मून से टकराती है तो वहाँ पे उस जगह पे गड्ढा हो जाता है, जिसे हम क्रेटर कहते हैं. सो सॉइल ऑफ द मून इज ड्राई एंड मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स. जो मून का जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है और छोटे छोटे रॉक के पीसेस से बना है. Life does not exist on moon due to the absence of air and water. यहाँ पे एयर और वाटर की कमी है, प्रेजेंस नहीं है इन दोनों का, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है. The temperature of the moon also changes very quickly. यहाँ पे जो मून का टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी बदलता है. And it changes with day and night time. ये जो है दिन और रात के साथ बदलता रहता है. मून जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है जब सूरज चमकता है. ऑन द डार्कर साइड इट्स वेरी कोल्ड. और जो डार्कर साइड है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है. ये एस्ट्रोनॉट्स दैट विजिट मून हैव टू वियर स्पेशल ड्रेसेस टू वियर द क्विक चेंज इन द टेम्परेचर. एस्ट्रोनॉट्स जो भी मून पे गए उन्हें क्या करना होता है? उन्हें स्पेशल तरीके के कपड़े पहनने होते हैं उस टेम्परेचर के सडन चेंज को झेलने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेजेस ऑफ द मून. The moon revolves around the earth and we always see the same side of the face of the moon. The revolution of the moon around the earth makes the moon appear as if it's changing the shape in the sky. So moon क्या करता है? अर्थ के चक्कर लगाता है और हमें ज़्यादातर उसका एक ही तरीका मीन्स एक ही फेस दिखाई देता है. मून क्या करता है? रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ और हमें ऐसा लगता है कि वो अपना जो शेप है वो बदल रहा है. जो अलग अलग शेप है मून के उसे देखा जा सकता है अर्थ से एंड इन्हें ही हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं. However, in reality, the moon does not change its shape or size. लेकिन अगर रियलिटी की बात करें तो मून अपना ना तो शेप बदलता है ना ही साइज बदलता है.
जो शेप है मून का वो हमें बदलता हुआ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो मून का जो सरफेस है दैट इज लाइटेड बाय द सन। कुछ हिस्सा है जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है, वही हिस्सा हमें दिखाई देता है। जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है वो हिस्सा हमें छुपा हुआ लगता है, इसलिए हमें लगता है कि मून अपना जो साइज है वो बदल रहा है। द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून हैव बीन नेम्ड। इन फेजेस के अलग अलग नाम दिए गए हैं। सो व्हेन वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, जब हमें मून पूरी तरह नहीं दिखाई देता तो हम उसे न्यू मून कहते हैं। ये जैसे कि यहाँ पे न्यू मून है। फिर आफ्टर न्यू मून नाइट द मून सीम्स टू बी वैक्सिंग एंड ग्रोइंग इन साइज। अब जैसे न्यू मून खत्म होता है उसके बाद आपको मून ऐसा दिखाई देता है जिसे हम वैक्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है वी कैन सी द फुल मून ओनली आफ्टर 7 days। अब हाफ मून दिखता है, फिर वैक्सिंग गिबियस आ जाता है, फिर 7 days के बाद हमें फुल मून दिखाई देता है। आफ्टर फुल मून नाइट द मून सीम्स टू बी वैनिंग एंड डिक्रीजिंग इन साइज। अब फिर से मून जो है फुल मून के बाद धीरे धीरे घटने लग जाता है जिसे वैनिंग कहा जाता है। एंड धीरे धीरे फिर ये हाफ मून में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वैनिंग क्रीसेंट बन जाता है। वी सी द हाफ ऑफ द मून ओनली वंस आफ्टर 7 days। 7 दिन में हमें ये देखने को मिलता है। एंड आफ्टर वन मोर वीक द मून रिटर्न्स टू द न्यू मून फेज। और एक हफ्ते बाद मून फिर से अपने न्यू मून फेज में चला जाता है। When the moon seems to be smaller than the half moon, जब मून छोटा दिखने लगता है हाफ मून से भी, it's called crescent moon, उसे crescent moon कहा जाता है। And when it seems to be larger than the half moon, और जब वो बड़ा दिखने लगता है हाफ मून से ज्यादा, उसे gibbous moon कहा जाता है। Now children, do you know that February is the only month of the year which can have no full moon? आपको पता है कि फरवरी सिर्फ एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपको कोई भी फुल मून नहीं मिलता। द लास्ट सच फरवरी वॉज इन 1866। 1866 में ऐसा फरवरी आया था जिसमें आपको एक भी फुल मून नहीं दिखा था। नाउ लैंडिंग ऑन द मून, आप देख सकते हैं कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं आपके सामने जिन्होंने मून पे अपना पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग लेफ्ट साइड में है, माइकल कॉलिंस मिडिल में है एंड एडविन एल्ड्रिन इन द राइट। ये तीनों गए थे मून पे फर्स्ट विजिट करने। सो द मून इज द ओनली हेवनली बॉडी दैट ह्यूमन बीइंग हैव ट्रैवल्ड सो फार। मून ही एक ऐसी एकलौती ह्यूमन हेवनली बॉडी है जिसपे ह्यूमंस जा चुके हैं। द फर्स्ट पीपल टू लैंड ऑन मून वर द 3 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स। 3 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। The spacecraft that carried them was Apollo 11। जो spacecraft था जो इन्हें ले जा रहा था उसका नाम था Apollo 11 and it landed on the moon on 20 July 1969। और ये जो लोग थे ये 20 जुलाई 1969 पे मून पे लैंड किए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले पर्सन थे जिन्होंने पहला कदम रखा था मून पे। एंड इनके बाद एडविन एल्ड्रिन और फिर माइकल कॉलिंस स्पेसक्राफ्ट में ही थे। सिंस देन मेनी मैन्ड spacecraft have visited the moon and gathered a lot of information about it। उसके बाद कई सारे spacecraft गए, कई सारे astronauts गए और कई सारी मून से इंफॉर्मेशन लेके आए। नेक्स्ट कम्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो चिल्ड्रन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का जो भगवान ने बनाया है, तो ऐसे ही कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। एंड ये क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। सच सैटेलाइट्स मेनली गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडीज दे ऑर्बिट। जिस भी स्ट्रक्चर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन ये सैटेलाइट सेंड करती रहते हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ज़्यादातर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज स्पुतनिक 1। ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जिसे लॉन्च किया गया था बाय सॉवरेन यूनियन इन 1957। सिंस देन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अबाउट 40 अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव डेवलप्ड। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस और 40 दूसरी कंट्रीज ने क्या किया, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है, इन्होंने भी बहुत सारे सैटेलाइट्स को डेवलप किया, लॉन्च किया, ऑपरेट किया। एंड डिपेंडिंग अपॉन द यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑफ 6 मेन टाइप्स।
ये सैटेलाइट्स भी अलग अलग यूजेस के लिए बनाए जाते हैं, तो इनके यूजेस के अकॉर्डिंग इन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है साइंटिफिक रिसर्च सैटेलाइट। ये क्या करता है, सैटेलाइट जो है इंफॉर्मेशन को यूनिवर्स से रिलेटेड जो है भेजता है, साइंटिस्ट के काम आती है ये। फिर अगले सैटेलाइट है वेदर सैटेलाइट। ये क्या करता है, वेदर पैटर्न को रीड करता है, वेदर फोरकास्ट को रीड करता है और सेंड करता है सिग्नल्स को। फिर आता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है इन्हें यूज़ किया जाता है रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, टीवी सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर आपके जो टेलीफोन कॉल्स हैं वो भी सैटेलाइट के थ्रू ही जाते हैं। फिर आता है नेविगेशन सैटेलाइट। ये क्या करते हैं, मैप वगैरह जो भी हैं, जैसे कि आप एयरक्राफ्ट में हैं, शिप में हैं, कहीं भी हैं, तो आपकी लोकेशन वगैरह ये सैटेलाइट डिटरमाइन करते हैं। फिर आता है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं प्लैनेट से रिलेटेड, जिस भी प्लैनेट के ऊपर है वो, उसके नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड और दूसरे चेंजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये देते हैं। फिर आता है मिलिट्री सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, मिलिट्री के काम आती हैं ये इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कम्स टाइड्स। इन मोस्ट प्लेसेस द टाइड राइजेस एंड फॉल ट्वाइस अ डे। तो बहुत सारी जगहों में क्या होता है, टाइड जो है दिन में 2 बार राइज होता है और गिर जाता है। रीचिंग अ मैक्सिमम हाइट कॉल्ड हाई टाइड। मैक्सिमम जो इनकी हाइट है उसे हाई टाइड कहते हैं, और जो मिनिमम है उसे लो टाइड कहा जाता है। सो व्हाट आर टाइड्स? अब टाइड्स हैं क्या? टाइड्स आर ग्रेट राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर। पानी का उठना और फिर गिर जाना। पानी ऊपर उठता है तो हाई टाइड, पानी नीचे गिरता है तो लो टाइड। कॉज बाय द ग्रेविटी ऑफ द मून। मून की ग्रेविटी की वजह से होता है और सूरज की ग्रेविटी की वजह से होता है। द मून्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ वाटर इज मोर देन द सन बिकॉज द मून इज क्लोजर टू द अर्थ। सो मून का जो ग्रेविटेशनल पावर है वो जो है अर्थ के ऊपर वो ज़्यादा इफेक्ट करता है सन के कंपैरिजन में, क्योंकि सन दूर है, मून अर्थ के ज़्यादा पास है। एंड इसी की वजह से जो वाटर है अर्थ के फेस पे फेसिंग द मून राइजेस टूवर्ड्स द मून, तो वो हिस्सा पानी का जो मून की तरफ फेस कर रहा है वो ऊपर की तरफ उठता है और इसे ही हाई टाइड कहा जाता है। उसी समय पे क्या होता है, देयर इज अ टाइड इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। अर्थ के दूसरी साइड में भी एक टाइड निकलता है एंड इट टेक्स अबाउट 6 hours फॉर राइजिंग वाटर। इसे 6 घंटे लगते हैं राइज होने में। टू रीच हाई टाइड, हाई टाइड तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं और दूसरे 6 घंटे लगते हैं इसे नीचे की तरफ जाने में। सो ड्यूरिंग full and new moon the gravitational force of the sun and the moon combines to produce the high tide। जब फुल मून होता है या फिर न्यू मून होता है तो इस समय जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सन और मून का वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है और इस समय आपको हाई टाइड देखने को मिलेगा। इसे हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। ड्यूरिंग क्वार्टर मून द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून अपोजेज ईच अदर। जब क्वार्टर मून होता है तो सूरज की जो फोर्सेस हैं और जो आपके चांद की जो फोर्सेस है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाती हैं एंड ये लो टाइड को क्रिएट करती है, जिसे नीप टाइड्स कहा जाता है। आप देख सकते हो हाई टाइड्स क्या कर रही हैं, तूफान मचा रही हैं। ये है लो टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। तो ये है चारों तरीके के टाइड्स एंड हियर यू कैन सी टाइड्स ऑन अर्थ। स्प्रिंग टाइड में क्या लोकेशन होती है एंड नीप टाइड में कैसा होता है मून का स्ट्रक्चर। Next comes, let's learn about eclipse of the moon and the sun। तो चलिए पढ़ते हैं eclipse क्या होता है मून और सन का। So an opaque object is one through which light cannot pass। opaque object क्या होता है? opaque ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं होती। तो अगर पेन है तो पेन के ऊपर लाइट पड़ेगी लेकिन इसके बीच से लाइट गुजर के नहीं जाएगी। ऐसे किसी भी चीज़ को opaque कहा जाता है। सो वेन लाइट फॉल्स ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट, जब वो लाइट जो है गिरती है ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट पे एक शैडो बन जाती है, एक उस चीज़ की परछाई बन जाती है। द अर्थ एंड द मून आर ओपेक ऑब्जेक्ट। ये जो अर्थ है मून है ये दोनों ही ओपेक ऑब्जेक्ट हैं और जब सूरज की रोशनी पड़ती है अर्थ पे या फिर मून पे तो इनकी परछाई पड़ती है दूसरे ऑब्जेक्ट पे और इसे ही हम एक्लिप्स कहते हैं। लेट्स लर्न व्हाट इज लूनर एक्लिप्स। So the moon goes round the earth at the rate of 3682.8 km/h।
सो मून जो है इतनी डिस्टेंस की वजह से मीन्स इतने किलोमीटर्स को कवर करता है 1 घंटे में। इट टेक्स 27 days टू कंप्लीट इट्स जर्नी वंस राउंड द अर्थ। अर्थ का एक चक्कर लगाने में मून को 27 days लगते हैं। वाइल ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ के चक्कर लगाने में मून समटाइम्स कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो ऐसे में क्या होता है, जब मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। एट अदर टाइम्स अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। और दूसरे कई बार होता है कि जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाता है। When the earth comes between sun and the moon, जब अर्थ आ जाता है सूरज और चांद के बीच में, and if all the three of them are in the straight line, और तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं, तो अर्थ की जो रोशनी है वो कहाँ पड़ती है, मीन्स उसकी जो परछाई कहाँ पड़ती है, सूरज चांद पे पड़ती है। And when the earth's shadow cover the complete disk of the moon, we call it cannot see the moon। और जब ये पूरी जो है अर्थ की रोशनी चांद पे पड़ती है तो हमें मून दिखाई नहीं देता है। इसे हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टोटल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। When it only partially covers the disk, जब वो थोड़ा बहुत ही उस डिस्क को कवर करता है, मून को थोड़ा बहुत कवर करता है, तो इसे हम पार्शियल लूनर एक्लिप्स कहते हैं। अ लूनर एक्लिप्स लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ मिनटों के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है। Once the moon moves out of the shadow of the earth, एक बार जब जो चांद है इस शैडो से बाहर आ जाता है, हमें वो दिखाई देने लगता है। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट अ लूनर एक्लिप्स डज नॉट ऑन एवरी फुल मून नाइट, इट ओनली अकर्स व्हेन द अर्थ एंड द मून आर इन द डायरेक्ट लाइन विथ ईच अदर विद द सन। सो ऐसा नहीं कि जितने भी फुल मून डे हैं उस दिन जो है अर्थ और चांद और सूरज एक ही लाइन में आ गए, नहीं, उसे हम लूनर एक्लिप्स नहीं कहते हैं। लूनर एक्लिप्स तभी होता है जब ये तीनों एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में होते हैं और अर्थ इन दोनों के बीच में होता है। नाउ चिल्ड्रन, हियर एन एक्टिविटी इज गिवन, यू हैव टू डू दिस एंड लर्न। यू हैव टू टेक अ बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, टेबल, स्टैंड, अ टेबल लैम्प, लैंटर्न एंड अ स्ट्रिंग। नाउ यू हैव टू प्लेस अ बास्केटबॉल ऑन द स्टैंड। स्टैंड पे बास्केटबॉल लगाना है and this will represent the earth। ये earth को resemble कर रहा है। now you have to tie a string on the form of a sling round the tennis ball। tennis ball में आपको string लगानी है sling form में, to hold it between the basketball and the power lamp। लैम्प और उस बास्केटबॉल के बीच में उसे लगाना है आपको। जैसे आप लैम्प को ओपन मीन्स जलाएंगे तो आप क्या देखेंगे, ये लैम्प सन को रिजेंबल कर रहा है। सो जैसे आप इसे जलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बास्केटबॉल है उसकी जो परछाई है वो किस पे पड़ रही है, टेनिस बॉल पे पड़ रही है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। दिस विल बी द पोजिशन इन विच लूनर एक्लिप्स विल कवर। यही वो पोजिशन है जिसमें वो लूनर एक्लिप्स आकर होता है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट सोलर एक्लिप्स। अब सोलर एक्लिप्स कब होता है? सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। जब सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में आता है, मून बीच में होता है, तब सोलर एक्लिप्स होता है। जो शैडो होती है मून की वो अर्थ पे पड़ने लगती है, जिससे जो है सन जो है छुप जाता है, सन हमें दिखाई नहीं देता है। सो एज अ मून मूव्स, जैसे मून मूव करता है सन जो है हमें दिखाई देने लगता है। एंड इफ द सन गेट्स कम्प्लीटली ब्लॉक्ड बाय द डिस्क, अगर सन पूरी तरह से ढक जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम इसे टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। और अगर थोड़ा बहुत हमें दिखता है सन तो हम इसे पार्शियल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। सोलर एक्लिप्स अकर्स ऑन अ न्यू मून डे। सोलर एक्लिप्स न्यू मून डे पे होता है। नाउ चिल्ड्रन, डू यू नो दैट यू शुड नेवर लुक एट सोलर एक्लिप्स विथ नेकेड आई। नेकेड आई मीन्स खुली आंखों से हमें कभी भी सोलर एक्लिप्स को नहीं देखना चाहिए। येस, योर आईज कैन गेट डैमेज, आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। नाउ here you have to do this exercise, this activity, and for this you will need a tennis ball and a marble. Now place the tennis ball in the left hand, hold the ball in the arm length in front of your face. Now with your right hand hold the marble in front of the ball. Close your left eye and slowly move the marble towards your open right eye. As a marble near your eye, as a marble nears your eye, जैसे मार्बल आपकी आंखों के पास पहुंचता है, less and less of the ball will be visible. Visible हमें बॉल जो है कम दिखाई देने लगेगा. Until the ball can finally no longer be seen.
This is how a solar eclipse takes place. ऐसे ही solar eclipse होता है. Now let's move on to flashback. The moon is the Earth's nearest neighbor. Moon has no air or water, so no living things can exist on the moon. The surface of the moon is not smooth as it has high mountains, deep craters and flat plains. Tides are caused by the gravitational attraction of the moon. The shadow of the earth produces a lunar eclipse. The shadow of the moon produces the solar eclipse. The most important influence of the moon is its effect on ocean tides. Now let's move on to new words. Here the first word is telescope. It is an instrument for making distant objects appear nearer and larger. Next word is satellite. Satellite is a relatively small natural body which orbits a planet. Now gravity is a force that tends to attract all the bodies of the Earth's surface towards its center. Now let's move on to book exercise, children. Here A exercise is take the correct option. First question is, our closest neighbor in space is the moon, sun, pole star or Venus. So it is the moon. Neil Armstrong was followed by Michael Collins, Edwin Aldrin, Gene Cernan, Yanel Shepard. It is Edwin Aldrin. So mark the C part. So like this, children, you have to do question number 3 and 4 yourself. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. The dash is our closest neighbor in space. So the moon is our closest neighbor in the space. The moon is a dash of the earth, is a natural satellite. It is a natural satellite of the earth. So do the rest of the questions as your homework. Now children, let's move on to C part, which is write true or false for the following statements. Here the first question is, the moon has no light of its own. Yes, this is true. We cannot hear any sound of the moon because it has no air. Yes, we cannot hear any sound on the moon. Moon पे जाने के बाद हमें वहाँ पे बिल्कुल sound नहीं सुनाई देगा, क्योंकि sound needs a medium and that is air. क्योंकि वहाँ पे air नहीं है, इसलिए हमें कोई भी sound वहाँ सुनाई नहीं देंगी. So this is also true. So do the rest as a homework. Now let's move on to D exercise, which is find out the name of the following. So the first artificial satellite is Sputnik 1 and the first man to land on the moon was Neil Armstrong. So rest of the questions are your homework, children. Now children, let's move on to E part, which is answer the following questions. Here the first one is, why is there no life on the moon? So because there is absence of air and water on moon, so life does not support there. Now what do you mean by high tide and low tide? These two are caused by the gravitational pull of the moon, and when the pull is high it's called high tide, and when the pull is low it's called low tide. You can add some more points of your own, and like this you have to do the rest of the questions. Read them, read the chapter again and complete their answers. So children, with this I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.